Morning children, Sunana Dogra here back again with chapter 17 economic problems and challenges, poverty and unemployment, class 10 Gujarat board social studies. In this chapter we are going to learn about poverty and unemployment. The Indian economy experiences many serious and complex economic and social problems such as population growth, price rise, black money, poverty, unemployment, starvation, corruption, terrorism. All these are the economic problems, and among these the poverty, unemployment, price rise and population are the major problems. So let us study about the poverty and unemployment, how poverty deals to unemployment and how population rise is the major effect due to the poverty and unemployment. See, because there is a rise in population, so what happens? Now suppose I give you an example of a family. If a family has 4 members, the living standard of that family will be more better than the family having 10 to 15 members. Why? Because the earning member of the family, if in 4 members is 1, still that amount is divided among all the 4 people staying over there. But if the earning member is 1 and the people who are depending on him are 10-15, so what happens? The amount of income is divided. So the same way in a country, when there is a population rise, what happens is the poverty level increases, and because there is a lot of population, what happens? The unemployment level is also increased, and because of all this, the price rise of the products of the commodities, the main commodities that are required also increases. Now what is poverty? पॉवर्टी इज जो पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, जिनके पास जो मेजर सुविधाएं हैं जैसे कि फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है जीने के लिए, वो जिनको सुविधा ना मिल रही हो, दे आर नोन एज पुअर और दे आर द पीपल हु आर लिविंग इन द पॉवर्टी लाइन. सो अब ये जो पॉवर्टी का मतलब है कि व्हेन वी डोंट हैव द फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, एंड दैट कंडीशन, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन को रहने वाले लोग, दैट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी. ओके, सो द कंडीशन, द सिचुएशन where the food, clothes, shelter, education and health services is not reaching to those people who need it, the basic needs are not being availed by those people, then that condition is known as comprehensive poverty. And the people living in such a condition in the society are called poor. Now what is BPL? That is people living below poverty line. Poverty is a qualitative concept. In India, poverty is viewed as lowest value of life. Poverty is a qualitative concept. In India, poverty is viewed as lowest level of life. Common features of people living below poverty line are: who are the people who live below poverty line? How do you define, or what are the features? How is it decided that this person is below poverty line person? See, a person who is not able to get 2 meals a day, मतलब 2 वक्त का खाना जिन लोगों को मुहैया नहीं हो पाता है, जो जिनको नहीं मिल रहा है, या फिर people suffering from problem of unavailability of dwelling places, मतलब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है. They are forced to live in shabby और slum areas. तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए प्रॉपर घर नहीं है, उनको कहाँ रहना पड़ता है? स्लम एरियाज़ में रहना पड़ता है. और शैबी मतलब बहुत ही टूटे फूटे हालात में, बहुत ही छोटे छोटे टेंट्स में, इस तरह से रहना पड़ता है. दे आर नोन एज द BPL पीपल. देयर इनकम इज़ लेस देन डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम. तो जो इंडिया की GDP, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया है कि पर पर्सन द कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री डिसाइड्स द poverty, below poverty or above people. So their income is less than determined expected income. तो उनकी जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत ही कम है.
Their lifespan is less than national average life expectancy. और क्योंकि वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनको प्रॉपर हाइजीन नहीं मिलता है, इसलिए क्या होता है, वो बीमारी में रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, इसलिए उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम है, जो नेशनल एवरेज लाइफ स्पैन होनी चाहिए उससे बहुत ही कम है. जनरली दे आर इलिटरेट. तो ऐसे जो लोग हैं वो इलिटरेट भी होते हैं. वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीजेज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. अब क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, दे डोंट गेट अ बैलेंस डाइट, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेज. Children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study. So ऐसे जो लोग होते हैं, ये आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि ये एक स्लम एरिया में रहने वाले जो फैमिली है उनकी कंडीशन है. तो यहाँ जो क्योंकि अर्निंग मेंबर जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी फैमिली को देखने की जिम्मेदारी होती है, तो क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं घर में वो पढ़ने की बजाय, स्कूल जाने की बजाय कहाँ चले जाते हैं, वो काम ढूंढने के लिए, अपनी फैमिली की देखभाल के लिए उन्हें काम पर लगा दिया जाता है. डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, उनका जो डेथ रेट है, क्योंकि उन्हें बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स जो चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से जो उनकी डेथ रेट है वो भी बहुत हाई हो जाती है. एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. अब यहाँ हमने ये देखा कि किस तरह, कौन सी कंडीशंस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है. अब यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर पॉइंट्स हाउ गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग देम. गवर्नमेंट इन लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, क्या काम कर रहे हैं. सो द फर्स्ट वन इज इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेजेस. सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय families or families living below poverty line. After finding out such families, government has started public distribution system on the basis of the ration card. तो पहले तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले जो लो इनकम वाले फैमिलीज़ हैं, लो इनकम वाले लोग हैं जो सिटीज़ और विलेजेस में रहते हैं, उनके बारे में पता करती है और फिर उनको राशन कार्ड के द्वारा जो उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स, जो राशन शॉप्स हैं, जहाँ से आप नॉर्मली कोई भी खाने की चीज़ें खरीदते हो वो नहीं, लेकिन स्पेशली राशन शॉप्स होंगे. आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना, 2 तरह के राशन कार्ड होते हैं, एक BPL राशन कार्ड, एक APL राशन कार्ड, दैट इज़ अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन. तो राशन कार्ड पर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पर बहुत ही चीप रेट पर, या फिर कभी कभी जैसे अभी कोरोना हुआ तो बहुत सारे राशन 2-3 महीने या 4-5 महीने के लिए फ्री भी दिया गया. सो द फेयर प्राइस शॉप्स में राशन कार्ड में मेंशन होता है, फैमिली मेम्बर्स के नाम मेंशन होते हैं, तो उसके हिसाब से हर फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनके हिसाब से उन्हें राशन दिया जाता है. तो राशन में क्या क्या होता है, राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एंड केरोसिन. तो जो ज़रूरत का सामान है, जो मेनली हमें खाना बना सके, उसके लिए हमें क्या चाहिए, द मेन कोर्सेज राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एंड केरोसिन. तो ऐसे खाने से ऐसे जो खाने के सामान है वो राशन कार्ड में फेयर प्राइस शॉप में बहुत ही चीप रेट पर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं. इट हैज़ ट्राइड टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड. तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बहुत सारी योजनाएं कर रही है, बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिससे कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सके. जैसे कि अभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनको रहने के लिए घर दिए जा रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, उनके लिए बहुत सारे सुविधाएं दी जा रही हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है. Concept of poverty was first propounded by Director of WHO. For calculating poverty lines, certain factors are considered, which includes expenditure on food, clothing, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitation facilities, transportation facilities, and income, as well as the intake of calories. तो जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम किसने ढूंढा, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ WHO. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम
पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो डिसाइड करा। तो वो कौन सी कंडीशंस है, विच फैक्टर्स कंसिडर दैट दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। द फर्स्ट वन इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड, देन क्लोथिंग, मतलब वो कितना खाने पर खर्चा कर सकते हैं। वो जैसे रेस्टोरेंट्स में जाकर या फिर महंगे खाने नहीं खा सकते, वो घर में भी जो सस्ती सब्जियां हैं या सस्ता अनाज है वो ही यूज़ करते हैं, वो महंगी चीज़ें नहीं यूज़ करते। वो ड्राई फ्रूट्स या फिर ऐसी बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स या महंगी वेजिटेबल्स वो सब वो नहीं यूज़ कर पाते हैं। क्लोथिंग, वो बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदते हैं। देन अकोमोडेशन, उनके पास रहने की जगह, रहने की जो सुविधा है वो किस तरह की है। देन एजुकेशन, वो किस तरह के स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते, पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। उनको हेल्थ की देखभाल के लिए क्या सुविधाएं हैं, उनको साफ़ पानी पीने का मिल रहा है कि नहीं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मतलब उनके पास वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, उनके पास व्हीकल है कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये WHO के डायरेक्टर ने एक कैलकुलेशन के लिए पॉवर्टी लाइन में कौन से लोग आ सकते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए ये सब चीज़ों का उन्होंने ध्यान में रखा। On the basis of these factors, a particular standard of living is fixed, which is known as poverty line. तो इन सारी conditions को ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्टर्स बनाए गए जिससे कि वो ये डिसाइड कर सके कि पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग हैं या नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, बहुत ही गरीब हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड एनीथिंग, बट कभी ऐसा भी होता है, हमने कई बार न्यूज़ में भी देखा है, अपने आसपास भी हमने देखा है कि बहुत ही गरीब फैमिली के बच्चे हैं लेकिन वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। तो फिर वो सारी ज़िंदगी तो पॉवर्टी लाइन में नहीं रहने वाले ना। अब एक बार उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाए तो वो पॉवर्टी लाइन से निकल कर अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। तो पॉवर्टी लाइन की कंडीशंस है वो चेंज होती रहती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज जिस फैमिली को बिलो पॉवर्टी लाइन में हमने टिक कर लिया है वो हमेशा उसी में रहने वाले हैं। So thank you. We have completed this first topic of this chapter. I'll continue with the next topic. Keep listening, keep liking and commenting on my channel. Thank you so much.